Hello everyone, hope you all are doing well, and today we are all going to study the new chapter called ionic equilibrium. And I hope you all have revised chemical equilibrium thoroughly. आपको मैंने बोला भी था कि जो चीज़ें हम पढ़ेंगे खासकर chemical equilibrium में I have already informed you that the next chapter, that is this ionic equilibrium, requires many concepts we have learned in the previous chapter. Okay, so from that we have to know the law of mass action, then K value. You know what is K? That equilibrium constant. So how to write the equilibrium constant expression, and after that Leach et al.'s principle. Okay, so these are some basic information we know and we have to apply these all things in ionic equilibrium. चलिए इसके बाद जो ionic equilibrium है, we learn about many things regarding acids and base, salts, and we have to calculate pH. We will be knowing about buffer solution. Then we have something called salt hydrolysis. All are related to acids and bases. So first of all, the chapter we have is ionic equilibrium. Okay, and this chapter they are saying, many of you have heard that this is very chapter, this is very hard chapter, you are very difficult chapter, we cannot understand it. मैं बोलता हूँ कि दिस इज़ द वेरी इजी चैप्टर. व्हाट यू हैव टू डू इज़ प्लीज़ मेक श्योर यू रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली. आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, धीरे से पढ़िए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी. कोई भी नई चीज़ नहीं है. कुछ फॉर्मूले हैं, पर अगर आप यू नो द बेसिक्स, यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यू कैन ईजिली क्रैक द प्रॉब्लम्स. हाँ, ओके. नाउ सो पार्टिकुलर आयनिक इक्विलिब्रियम की शुरुआत ही हम करते हैं एसिड एंड बेस से. वाट एक्जेक्टली एसिड बेस एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैव बीन. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो इतिहास उठा के देखेंगे आप, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स गिवन हैं. बहुत सारे साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं कि व्हाट एग्जैक्टली एसिड्स एंड बेस आर, और उसको कैसे हम डिफाइन करें, कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करें. तो शुरुआत करते हैं अर्हेनियस कॉन्सेप्ट से. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अर्हेनियस एसिड्स एंड बेस. सो वी विल बी डिस्कसिंग एसिड बेस theories. Okay, and after that the first one is Arrhenius concept. Which one? Arrhenius concept. Arrhenius concept. Okay, so what exactly this Arrhenius concept is? सबसे important बात this particular concept से related है कि this defined acids and base in the सॉल्यूशन में हो तभी ये बताता है कि गिवन थिंग इज एसिड, गिवन स्पीसीज इज बेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए को ये जान लेना चाहिए कि ये किसकी बात करता है. ये सॉल्यूशन की बात करता है. ठीक है, ये आपको सॉल्यूशन की बात करता है. तो वर्ड क्या बोल, इनका कहना क्या है, एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं. इट स्टेट्स दैट अर्हेनियस एसिड्स आर those species which can give H plus ion. So क्या है acids? We are talking about acids. So acids are species which can furnish H plus ion in solution. So this I am saying again, this word solution is very important. मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये H plus ion furnish करता है solution में, this is very important. वो solution में होना चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि yes, this is acid or something is base. Okay, so yeah, acids are species which can furnish H plus ion in solution. Similarly, what they are telling about bases are substance. Bases are species that furnish OH ion in solution. सो क्या है, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. एसिड्स क्या होता है देख लीजिए. एसिड्स आर सब्सटेंस, ऐसे बंदे हैं जो H प्लस आयन देते हैं सॉल्यूशन में. बेसिस क्या होते हैं, जो OH आयन देते हैं सॉल्यूशन में. सो बार बार मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ. इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने क्या डाला, जैसे इसकी बात करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या हो जाएगा, H प्लस आयन. So you know HCl is acid. So this HCl aqueous means this HCl is already
इज गिवन इन द वाटर सॉल्यूशन। आपको पता है कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो हमने वाटर ले लिया है। सो क्या होगा, अगर ये HCl क्या होता है, आपको क्या देता है, H+ आयन देता है एक्वस मीडियम, एंड क्या देता है, क्लोराइड आयन देता है अगेन एक्वस मीडियम। सो दिस पार्टिकुलर HCl मॉलिक्यूल इज गिविंग H+ आयन इन द सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई व्हाट वी से दिस HCl इज आल्सो कॉल्ड एज दिस अर्हेनियस एसिड। क्लियर। नाउ बेस की बात करते हैं। सो व्हाट वी हैव, यू कैन सी दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड विल गिव यू, दिस विल गिव यू sodium positive aqueous, and yes, this OH negative ion, so yeah, this is again in aqueous medium. So what we say that yes, we have something called sodium hydroxide, and this is the arrhenius base। क्या, क्योंकि ये aqueous medium में है। ओके अब अगर ये मैं पूछता कि HCl गैस इज दिस योर, क्या ये आपका अर्हेनियस एसिड है? जी नहीं, आप इसको अर्हेनियस एसिड नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आपका जो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट था वो आपके गैसेस फेज के लिए डिफाइंड ही नहीं था। उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि ये जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो एसिड है कि नहीं। अगर आप सॉल्यूशन में जाएंगे तो ये इनकी बात करेंगे। तो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट किस पे लागू हुआ था? सॉल्यूशन की बात करता था और बोलता था कि ऑल दो सब्सटेंस, ऑल दो स्पीसीज विच कैन गिव यू H+ आयन इन द सॉल्यूशन are acids which can give you OH ion in the solution are called bases। ओके चलिए, अब मान लीजिए कि क्या है, आपके पास H2SO4 है, H2SO4 है। यस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अर्हेनियस एसिड, यूँ क्योंकि ये H+ आयन आपको क्या कर सकता है, सॉल्यूशन में दे सकता है। HSO4 नेगेटिव, सो ये क्या है, H पॉजिटिव है, सो ये आपको सॉल्यूशन में दे रहा है। तो आप बोल सकते हो कि हाँ जी, H2SO4 ऑल्सो योर अर्हेनियस एसिड। सिमिलरली वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या है, एसिड्स एंड बेस हैं जो H+ और OH नेगेटिव आयन आपके फर्निश करते हैं। ओके ये तो बेसिक फंडामेंटल क्या है किसका, आपका अर्हेनियस कॉन्सेप्ट का था। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे H आ रहा है और हमने वाटर की बात की है, एक्वस मीडियम की बात की है, तो कभी कभी आप H3O पॉजिटिव लिखा देखोगे, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं आप हाइड्रोनियम आयन बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोनियम आयन बोलते हो। सो क्या है ना कि ये H2O पॉजिटिव एंड दिस H पॉजिटिव इज आर सेम। कैसे, मैं बता दूं कैसे सेम है कि क्या है, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, और यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव है। तो क्या करेगा ये लोन पेयर, क्या करेगा, इस पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन गो टू पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सी बात है, हमेशा जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पास आता है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास आता है। दिस इज द बेसिक केमिस्ट्री। अगर ये चीज़ समझ लिया तो केमिस्ट्री समझ लिया कि सिंपल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इज केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या गया, इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, व्हाट यू आर गेटिंग दिस H3O पॉजिटिव, करेक्ट। ओके सो ये क्या है, एक हाइड्रोनियम आयन है एंड बोथ आर सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। H पॉजिटिव बोलिए चाहे H3O पॉजिटिव बोलिए, बोथ आर सेम। ठीक है, उसी के तरीके से आप क्या बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको H3O पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रेटेड फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के जुड़ गया, हाइड्रेटेड फॉर्म बोलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है ना कि आपको क्या दिखेगा, H5O2 पॉजिटिव दिखता है। तो एक तरीके से लिखने का तरीका क्या है, आप ऐसे लिख सकते हो, क्या H2 लेट्स राइट इट H पॉजिटिव एंड H2O X। ओके सो इस तरीके से आप आराम से लिख सकते हो, आप आराम से इस तरीके से बना सकते हो कि हाँ H पॉजिटिव है, क्योंकि आप देखोगे वो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स भी जुड़ते चले जाएंगे। आप केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ोगे कि लिथियम होता है, लिथियम पे क्या होता है, लेयर बनता है वाटर का, ऑल दोस थिंग्स यू नो। सो क्या है कि कभी कभी क्या है, दिस इज द हाइड्रेटेड प्रोटॉन। हाँ, तो क्या है कि प्रोटॉन के ऊपर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या आ रहे हैं, लेयर बना सकते हैं। तो कभी आपको H3O पॉजिटिव दिखे तो ये मत घबराइए मत कि क्या नई चीज़ आ गई है, वो क्या करता है कि H+ की बात करना पसंद कर रहा है, ये भी क्या है, H+ की बात करना पसंद कर रहा है। कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, H2O है, H2O है और दिस इज लिक्विड फॉर्म में है, और आपने क्या किया है, HCl डाला है गैसियस फॉर्म में। ठीक है, ध्यान रखिए, HCl डाला है गैसियस फॉर्म। अब क्या होगा, HCl गैसियस फॉर्म से क्या है, लिक्विड फॉर्म में आएगा, और क्या होगा, ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव बनाएगा। हाँ, H3O पॉजिटिव बनाएगा और क्लोराइड नेगेटिव बनाएगा, और एक्वस फॉर्म में बनाएगा। किसमें, एक्वस फॉर्म में बनेगा। कैसे हो गया, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स आया, HCl जो है गैसियस मॉलिक्यूल था, ये वाटर के साथ आया और क्या हुआ, ये H+ अपना किसको दे दिया, H2O को दे दिया।
तो ये HCl ने अपना H प्लस किसको दिया है, H2O पॉजिटिव को दे दिया, तो H2O को दे दिया, तो ये H3O पॉजिटिव बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया, और ये क्या है, क्लोराइड आयन बन गया। तो इसने क्या दिया है, अपना H प्लस दिया है, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, HCl क्या यहाँ पे एसिड का काम कर रहा है एक्वस मीडियम में जाने के बाद। एक्वस मीडियम में पहले HCl से एक्वस बनेगा, फिर H पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बेसिक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था कि सबसे पहले आप सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करने के बाद ही आप बोलेंगे कि वो एसिड है। एसिड तब होगा जब वो H पॉजिटिव दे रहा होगा, ठीक है, और वो एसिड होगा जब H पॉजिटिव दे रहा होगा, बेस तब होगा जब OH नेगेटिव दे रहा होगा सॉल्यूशन में। वेरी फंडामेंटल, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके लिमिटेशंस हैं, आपके आर्हेनियस एसिड के कुछ लिमिटेशंस हैं, मैं यही लिख देना चाहता हूँ, सब लोग जान लें लिमिटेशंस क्या हैं। बताएंगे क्या लिमिटेशंस ऑफ क्या आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, क्या क्या लिमिटेशन है। पहला तो कॉन्सेप्ट है कि इन्होंने क्या करी बात, पहला ये वाला कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है, एक्वस मीडियम की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम की ही बात करता है। गैस है, मॉलिक्यूल्स है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट फेज में हैं उनकी बात नहीं करते, यानी उनको पहचानता ही नहीं है कि वो एसिड है, बेस है, क्या है, उनको मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्या आप सबको समझ में आ रहा है कि ये जो बंदा है आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है, वो क्या करता है, सिर्फ एक्वस मीडियम की ही बात करता है, वो दूसरे फेज की बात करना ही पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो दूसरे ऐसा थोड़ी कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक्वस मीडियम में ही होते हैं, हर फेज में होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, हर फेज में घूम रहे हैं, हवा में घूम रहे हैं, तो आप इनकी बात नहीं करोगे, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो इनकी बात उन्होंने नहीं करी। दूसरी बात क्या है, डिफरेंट बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसको इन्हें आर्हेनियस पहचान ही नहीं पाए। इवन तो आप उसको एक्वस मीडियम में डाल दो तो इन्होंने पहचान ही नहीं पाया कि एसिड है या बेस है। कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए कि ElCl3 हो गया, या मान लीजिए कि BF3 हो गया, दीज आर एसिड्स। जैसे मान लीजिए आपका क्या है कि बोरिक एसिड हो गया, या मान लीजिए कि आपका अमोनिया हो गया, ये बेस। ठीक है, सो ऑल दीज आर एसिड्स एंड बेस, डिफरेंट एसिड्स एंड बेस है हमारे पास। पर क्या है ना कि देखिए, ये क्या ये H प्लस देगा, जी नहीं। क्या ये H प्लस देगा, जी नहीं। क्या ये H प्लस देगा, जी नहीं। क्या ये अमोनिया OH नेगेटिव देगा, जी नहीं। पर ये सारे क्या हैं, एसिड एंड बेस हैं। दिस थ्री आर एसिड्स, दिस इज ऑल्सो एसिड, दिस इज बेस, करेक्ट। ये सारी चीज़ एसिड एंड बेस हैं, पर ये जो इनका जो एक्सप्लेनेशन है इनके आधार पे तो नहीं हो सकता है। तो इसके लिमिटेशन को हटाने के लिए, इसके जो एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट है बताने का जो तरीका है, उसको और अच्छे तरीके से बताने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। ओके, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो कृपया करके आप थोड़ा इन सारी चीज़ों को जल्दी से नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बात करते। ओके जी, अगला जो कॉन्सेप्ट अभी हम बात करेंगे वो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ओके, इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंशन हल्का सा ही चेंज किया है, और इस डिफरेंशन से काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई है, चीज़ें संभल गई हैं। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। ये क्या है, ये बातें हम जानते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आराम से इस चीज़ को समझेंगे। ओके, सो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ने क्या बोला, आखिर इनकी चीज़ें क्या डिफर थी उनसे। ब्रॉन्स्टेड का जो एसिड वाला कॉन्सेप्ट था बहुत ही सिंपल था, और सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि इनको वाटर की आवश्यकता नहीं है, इनको जरूरी नहीं कि आप वाटर में डालिए नहीं डालिए, इनसे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने सीधे मॉलिक्यूल्स की बात करी। सो बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि उन्होंने क्या करी थी, वाटर में डालना है नहीं डालना है उसको कोई मतलब नहीं है, आप आराम से सीधी बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, वाटर मॉलिक्यूल्स की बात की उन्होंने। सबसे पहले तो वाटर को हटा दिया, उसके बाद उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है, कोई भी स्पेसीज है, वो क्या होगा, वो एसिड कहलाएगा जब वो H प्लस देगा। सो क्या बोल सकते हैं कि अगर वो कोई भी स्पेसीज एसिड्स को क्या उन्होंने बोला, एसिड्स आर H प्लस क्या है, डोनेट करे, H प्लस डोनेट करे। ठीक है, तो ऐसे सारे सब्सटेंस, ऐसे सारे स्पेसीज जो H प्लस को सीधा डोनेट कर दे, दोज आर कॉल्ड एसिड्स। एंड सिमिलरली बेस की बात क्या थी, बेस थोड़ा सा डिफर था इनका। बेस उन्होंने क्या बोला, बेस आर दोज स्पेसीज विच कैन एक्सेप्ट, ठीक है, सो दिस इज द H प्लस डोनेटर।
ये H+ डोनेट करने वाले हैं और ये क्या है, H+ एक्सेप्ट करने वाले। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ब्रॉन्स्टेड एंड योर क्या है, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस ये था। इन्होंने बताया, ब्रॉन्स्टेड वाले ने बताया, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट का कहना था कि बेसिस आर दोज स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट H+ आयन एंड एसिड्स आर दोज स्पीसीज विच कैन डोनेट H+ आयन। ठीक है, तो क्या है, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। अब जैसे मान लीजिए आपके बहुत एसिड्स हैं, जैसे HCl है, ठीक है, क्या है, HCl है। HCl क्या करता है, H+ देता है, H+ डोनेट करता है, H+ डोनेट करता है। दैट्स वाई वी कॉल दैट दिस HCl इज कॉल्ड एसिड्स। सिमिलरली बहुत सारे दूसरे भी हैं आपके पास, मान लीजिए H2SO4 हैं, ये भी क्या है, H+ क्या होता है, डोनेट करता है। और क्या लिखते हैं इसको आप, HSO4 नेगेटिव लिखते हो। और भी क्या है, और तो बहुत सारे एसिड्स हैं, मान लीजिए कि HCN है, ये भी आपको क्या है, H+ डोनेट करता है और साइनाइड नेगेटिव बनता है। और भी बताइए, बहुत सारे एसिड का नाम बताइए। अब हमारे पास दुनिया भर के एसिड्स हैं। HClO4, HClO4 है, दिस इज और HClO4 क्या है, एसिड है। क्यों, क्योंकि ये H+ डोनेट करता है और ClO4 नेगेटिव बनाता है। और भी एसिड्स हैं हमारे पास, बहुत सारे एसिड हैं, बताइए क्या है, H3PO4 है, तो H3PO4 है एंड व्हाट दिस इज डूइंग, दिस H+ एंड H2PO4 माइनस। ओके, तो ये सारे आपने क्या देखा, ये इन्होंने देखा आपने कि ये बंदे, ये सारे जो स्पीसीज हैं, ये क्या कर रहे हैं, H+ डोनेट कर रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया, H+ डोनेटर है। और जो H+ डोनेट कर पा रहा है, इसीलिए इनको क्या बोल सकते हैं हम, ब्रॉन्स्टेड एसिड बोल सकते हैं, एसिड्स बोल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इनका बेस का कथन क्या था, बेस का कथन था कि ऑल दोज स्पीसीज विच कैन डोनेट विच कैन एक्सेप्ट H+ आयन। सो विच कैन एक्सेप्ट H+ आयन कैसे होगा बताइए, जैसे अमोनिया, याद है अमोनिया की बातें उन्होंने गलत कर दी थी, अमोनिया को समझ में नहीं आया था उन्हें कि अमोनिया क्या है, एसिड है या बेस है, पता नहीं चला था। बट ब्रॉन्स्टेड भैया ने बताया कि मान लीजिए ये H+ है, यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर H+ को ले लेगा, तो दिस अमोनिया इज H+ एक्सेप्टर। सो क्या है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, बेस। ओके, सो क्या है, वो H+ एक्सेप्ट करने के बाद अमोनियम आयन बनाता है, इसलिए आप क्या बोल सकते हो कि यस, अमोनिया इज अ बेस। कौन सा बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ब्रॉन्स्टेड के कथन के, ब्रॉन्स्टेड का जो डेफिनेशन था एसिड बेस का, उस पर ये अमोनिया खरा उतरा है। और अदरवाइज वर्सा, जो अमोनिया जो बेस है उसको बताने के लिए आपका ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट खरा उतरा है। दैट्स व्हाट वी कैन से दैट या वी हैव द अमोनिया दैट इज बेस। एंड इसको एक्सप्लेन करने में आपका जो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी है वो उसने क्या करी है, सफलता हासिल की है। ठीक है, सो ये क्या हो गया, सिमिलरली क्या है, NaOH है, NaOH है, तो क्या हो सकता है, मान लीजिए H+ आयन दिया आपने, तो कैसा होगा, ये OH है, आप NaOH को Na पॉजिटिव OH नेगेटिव लिख सकते हो, तो क्या हो सकता है, Na पॉजिटिव एंड H2O। सो क्या है, यस, योर NaOH ऑल्सो बेस, ये इस रूप में दिख रहा है, ये H का H+ एक्सेप्ट करता है, NaOH H+ एक्सेप्ट करता है। सो यस, योर NaOH इज क्या है, एक बेस है। तो क्या समझ में आ रहा है कि वो सारे बंदे, वो सारी स्पीसीज जो H+ एक्सेप्ट कर ले, वो क्या हो जाएगी, आपकी बेस कहलाएगी। वो सारी स्पीसीज जो H+ डोनेट करे, वो क्या कहलाएगी, एसिड कहलाएगी। किस कॉन्सेप्ट के अंदर, आपके ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट करके। अर्हेनियस ने क्या बोला था, H+ जो दे वो एसिड है, वेरी फाइन, बोथ आर सेम। बट उन्होंने, अर्हेनियस ने बोला था कि H+, अर्हेनियस ने बोला था कि OH नेगेटिव जो सॉल्यूशन में दे, दैट इज बेस। ब्रॉन्स्टेड ने बोला कि H+ जो ले वो बेस। सो H+ एक्सेप्टर जो थोड़ा सा मोर डिफाइंड, मोर अच्छा, ठीक है, मोर रिफाइंड कॉन्सेप्ट है, वो ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो ब्रॉन्स्टेड का जो बेस कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या हो गया, आप अमोनिया को बोल सकते हो कि इट इज़ ए ब्रॉन्स्टेड बेस। क्या सबको क्लियर आ गया, क्या सभी लोग समझ में आ गए कि एग्जैक्टली अर्हेनियस और जो ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट के बीच का डिफरेंस क्या है, सबको समझ में आ गया। आई थिंक दिस टू कॉन्सेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इसी का यूज़ करोगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और प्लीज़ अगेन आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू, प्लीज़ अंडरस्टैंड इट दैट दिस आयनिक इक्विलिब्रियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू यूज, यू विल बी यूजिंग दिस पार्टिकुलर चैप्टर इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
calculation of pH, okay, all those things. So please make sure that you अपना पूरा 100% यहाँ पे दीजिए, ध्यान लगाइए और फिर हम लोग मिलके चीज़ों को अच्छा कर लेंगे. ओके, नाउ इसके बाद क्या है ना, जैसे ही आपको अपने इसके बारे में समझ लिया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स. ठीक है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स एग्जैक्टली क्या है कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स का मतलब क्या है कि जो एसिड बेस होंगे वो एक H+ से डिफर करेंगे. ठीक है, वो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा क्या होगा, वो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ऑफ 1 H+ और 1 H+ आयन, दैट्स ऑल. सो कोई भी कंजुगेट एसिड बेस है, उनके बीच का अगर डिफरेंस 1 H+ है, तभी उसको आप क्या बोलेंगे, एसिड बेस पेयर्स बोल सकते, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स बोल सकते हो. ठीक है, कोई भी एसिड बेस है, अगर उनके बीच का डिफरेंस अगर H+ है तो आप बोलोगे उसको कंजुगेट एसिड एंड बेस. सिंपल सी बात है. मैं फिर से आपको क्या यहाँ पे हमने क्या देखा था, HCl देखा था, तो आपको मैं HCl ही डालता हूँ. HCl सबसे सिंपल तरीका है समझने के लिए, HCl. ठीक है, तो HCl ने क्या किया, ये देखिए HCl ने क्या किया, एक H+ लूज़ किया और एक H+ दिया और ये क्या क्लोराइड दिए. ठीक है, तो ये HCl मॉलिक्यूल ने क्या किया बताइए, एक H+ लूज़ किया और लेट्स लाइक दिस क्लोराइड बनाया. करेक्ट, क्लोराइड बनाया. तो इनकी और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, एक H+ है. तो दिस इज एसिड क्यों, ये बंदा H+ लूज कर रहा है. जो H+ लूज करता है, जो H+ डोनेट करता है, उसको एसिड बोलते हैं. तो HCl H+ डोनेट कर रहा है तो इसको एसिड बोला. और इनके बीच में एक H+ का डिफरेंस है, तो ये क्या बंद हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस हो जाएगा. क्या समझ में आ रहा है आपको कि एसिड और बेस जो होते हैं, अगर एसिड और बेस के बीच का डिफरेंस अगर एक H+ हो तो उसको क्या बोलेंगे, कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलेंगे. अब एसिड कौन है, बेस कौन है, कैसे समझेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट. एसिड क्या होता है, जो H+ रिलीज करता है, जो H+ डोनेट करता है, किसी बंदे को दे देता है, वो एसिड होता है. HCl एक एसिड है, क्यों, क्योंकि H+ किसी को दे दिया, सॉल्यूशन में दे दिया, जिसको देना था उसको दे दिया. ठीक है, तो ये बंदा तो एसिड है, ये तो समझ में आ गया. जब HCl से क्लोराइड माइनस वाला क्लोराइड नेगेटिव आयन बना, तो ये क्लोराइड नेगेटिव आयन क्या है, एक बेस है. क्यों बेस है, क्योंकि यहाँ पे एसिड है, एसिड से H+ टूटने के बाद ये क्लोराइड आयन बना है. और इस बंदे को बोलेंगे क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, एक H+ का डिफरेंस है, इसीलिए आप इसको बोलोगे कंजुगेट बेस. ठीक है, तो क्या है, डिफरेंस ऑफ 1 H+ आयन इज कॉल्ड क्या है, अगर डिफरेंस ऑफ 1 H+ आयन है तो आप क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड एंड बेस. अगर ये एसिड की बात की जाए तो आपने ये बोला. अब मान लीजिए कि क्या है, आपका बेस है, कोई बेस मान लीजिए, बेसिक इज अमोनिया. अमोनिया क्या हुआ, आपने क्या किया, अमोनिया में एक H+. अमोनिया का मतलब क्या है, व्हाट इज अमोनिया, अमोनिया इज द बेस एंड बेस का काम क्या है, H+ को एक्सेप्ट करना. तो मैंने अमोनिया में एक H+ ऐड किया तो अमोनियम आयन बना. ठीक है, अमोनियम आयन बना. ठीक है, सो व्हाट इज दिस अमोनिया, अमोनिया इज कॉल्ड बेस, बेसिक. ठीक है, अमोनिया इज ए बेस, पर जब इसने H+ एक्सेप्ट किया तो क्या बनाया, अमोनियम आयन बनाया. तो अमोनियम आयन बनाया है, तो अब बताइए इसको क्या बोलेंगे, एसिड से बनता है कंजुगेट बेस, सो बेस से बनेगा कंजुगेट एसिड. क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसके इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 H+ है. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 H+ है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कंजुगेट एसिड. ठीक है, तो आपको समझ में आया कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस क्या है. प्लीज समझिए फिर से कि कंजुगेट एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट क्या है, कि दो एसिड, एक एसिड एंड एक बेस होगा, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो एक H+ होना चाहिए, नथिंग अलग, कुछ अलग नहीं होना चाहिए, एक H+ होना चाहिए. तो क्या होगा, HCl है और क्लोराइड है, तो HCl और क्लोराइड के बीच का डिफरेंस क्या है, एक H+ है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कंजुगेट बेस हो जाएगा. अब अमोनिया इज अ बेस, व्हाट वी नो दैट अमोनिया इज अ बेस, एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर, इफ यू ऐड H+ आयन, अमोनिया क्या करता है, H+ एक्सेप्ट करता है, तो अमोनिया H+ एक्सेप्ट किया और बनाया अमोनियम आयन. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू, अमोनिया इज अ बेस एंड फ्रॉम बेस व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज कंजुगेट एसिड.
कंजुगेट एसिड। सो इस तरीके से डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप चाहो तो लगा सकते हो। क्या हो सकता है, मान लीजिए कि H2SO4 है, H2SO4 क्या कर सकता है, एक H+ लूज कर सकता है और HSO4 नेगेटिव बना सकता है। व्हाट इज इट, दिस इज एसिड, सो व्हाट इज इट, दिस इज कंजुगेट बेस। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सिमिलरली डिफरेंट एसिड ले लीजिए, H3PO4 ले लीजिए, H3PO4 है, ये क्या कर सकता है बताइए, H2PO4 माइनस बना सकता है। क्यों, एक H+ लूज किया इसने। सो व्हाट इज दिस, दिस इज एसिड एंड दिस इज व्हाट, कंजुगेट बेस। वेरी सिंपल। आप जितनी भी चीज़ें कर सकते हो आराम से, इसमें आपके जो खेलने की चीज़ें आप चाहो तो आराम से खेल लो कि एक H+ निकालिए एंड यू विल गेट इज कंजुगेट बेस। ठीक है, फिर एक प्लस निकालिए, जैसे यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ये कंजुगेट बेस बन गया है। तो फिर से मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे याद दिलाना चाहूँ, मैं इसको रेड से लिख देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने कंजुगेट बेस बनाया है वो बेस की तरह काम करे, वो ट्रू बेस की तरह काम करे। जैसे ये बंदा ट्रू बेस की तरह काम कर सकता है, ये ट्रू बेस की तरह, ट्रू एसिड की तरह काम कर सकता है, पर ज़रूरी नहीं कि आपका जो ये अपने बेस कंजुगेट बेस बनाया है वो आपका ट्रू बेस की तरह काम करे। क्यों, देख लो ना क्या हो रहा है, H2SO4, ठीक है, H2SO4 से आपने क्या बनाया है, एक H+ लूज किया है। सिंस ये H+ लूज कर रहा है तो आपने बोला कि HSO4 नेगेटिव, इनके और इनके बीच में एक H+ का डिफरेंस है, ये एसिड है, तो आपने इसको कंजुगेट बेस बोल दिया। वेरी फाइन, नो प्रॉब्लम। बट क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपने कंजुगेट बेस बोला है तो वो बेस की तरह क्या करे, काम करे, बेस की तरह रिएक्ट करे। क्यों, क्योंकि जब आप HSO4 नेगेटिव को देखोगे, क्या इसके पास एक और H+ नहीं है जो ये SO4 2 नेगेटिव में बनाए। जी हाँ, ये एक और H+ लूज कर सकता है, ये जो स्पेसीज है वो एक और H+ लूज कर सकता है, और जो H+ लूज कर सकता है आप उसको एसिड बोलते हो। तो ये बंदा एसिड की तरह काम करता है। और अब इसको देखो ना, ये बंदा क्या बन गया, दिस इज द कंजुगेट बेस ऑफ, दिस इज द कंजुगेट बेस ऑफ HSO4 माइनस। ठीक है, प्लीज़ अगर मैं बता रहा हूँ एक H+ का लूज होना चाहिए, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे कि क्या H2SO4 एंड SO4 -2 क्या कंजुगेट एसिड बेस पेयर हैं। H2SO4 एंड SO4 -2 क्या दोनों कंजुगेट एसिड बेस पेयर हैं। जी नहीं, नहीं है, ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्या होना चाहिए, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1H+ होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2H+ है तो ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। कौन हो सकते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो क्या क्या होंगे, H2SO4 एंड HSO4 एंड HSO4 -2 एंड HSO4 -1 एंड सल्फेट आयन। तो ये दोनों बंदे जो हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर की बात करेंगे। और ये जो है आपका, ये जो आपका क्या है, ये बेस की तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा। ये जो बंदा है वो भी बेस की तरह काम करेगा, पर आप एसिड की तरह भी काम करेगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि समथिंग कॉल MP, आपका MP प्रोटिक होता है, एम्फोटेरिक होता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो समझ में आएगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर की मतलब की बातें समझिए कि वो जो दो स्पेसिस होगा वो एक H+ से डिफर करेगा, इसीलिए उन दोनों स्पेसिस को कंजुगेट एसिड एंड बेस की बात हम बताएंगे, कंजुगेट एसिड बेस बोलेंगे। अब दोनों में समझना कैसे है कि कौन एसिड है, तो एसिड कैसे समझेंगे, इनके कॉन्सेप्ट से समझेंगे। जो बंदा H+ सॉल्यूशन में दे दिया, या जो बंदा H+ किसी और को दे दिया, या जो बंदा H+ लूज कर लिया, वो हो गया एसिड। जो बंदा बेस वो होगा जो H+ अपने पास ले ले, किसी और से पकड़ ले, एक्सेप्ट कर ले, तो उन सारे स्पेसिस को बोलेंगे बेस। तो हमें एसिड और बेस तो समझ में आ गया, पर जो ऐसे स्पेसिस होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1H+ होता है, तो वो क्या हो जाता है आपका, वो हो जाता है आपका कंजुगेट एसिड बेस। ठीक है, तो प्लीज़ आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। ओके, अब क्या है ना कि कंजुगेट एसिड बेस जो होते हैं वो अपन एक दूसरे के काफ़ी अपोजिट होते हैं, ये अपोजिट होते हैं। ये मैं बताता हूँ क्या एग्जैक्टली मैं बोलना चाह रहा हूँ। कंजुगेट एसिड बेस जो है बताया मैंने, वो क्या है, इनका जो नेचर होता है एक दूसरे के काफ़ी अपोजिट होता है।
ठीक है, तो वो बातें भी हम देखते हैं अभी। conjugate acid and base. I'll write it here only. Acid and base are conjugate acid and base are opposite in nature. कैसे, इसको समझते हैं कैसे। ठीक है, सो मान लीजिए ये कोई आपका क्या है, एसिड है, ये एसिड है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना जरूरी है। एसिड से बेस बन रहा है, ठीक है, एसिड से बेस बन रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे समझिए इसको कि कंजुगेट एसिड बेसेस आर अपोजिट इन नेचर। इट मीन्स कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस बनेगा वो क्या होगा, वीक होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंजुगेट जो आपका एसिड है, अगर वो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो बेस बनेगा, जो कंजुगेट बेस बनेगा वो बहुत वीक होगा। सिमिलरली अगर आपका जो एसिड है वो वीक है, एसिड क्या है, वीक है, तो उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि अपोजिट नेचर का होता है। कंजुगेट एसिड बेस का जो पेयर है उसमें जो एसिड बेस मिलेंगे आपको वो अपोजिट नेचर का होगा। क्या होगा, जैसे मान लीजिए HCl है, व्हाट वी नो दैट HCl इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। So this HCl is strong, it means that base we are getting, that conjugate base we are getting, this chloride ion it is regarded as a very weak base। ठीक है, जो आपको जो क्लोराइड आयन है दैट इज वेरी वीक बेस। तो जो क्लोराइड आयन है काफ़ी ज़्यादा ही वीक बेस है। कैसे पता चला कि ये क्लोराइड आयन आपका वीक बेस है, क्योंकि इसका जो एसिड है वो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस पे पार्टिकुलर प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, खासकर नीट में, कि इनमें से कौन सा बेस है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस और वेरी वीक बेस। हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, फाइंड दैट द कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड पता कीजिए, एंड व्हाट वी विल गेट दैट एसिड्स के हम टर्म एसिड को क्या ऑर्डर में लिख लेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका जो कंजुगेट जो बेस बनेगा वो काफ़ी वीक बनेगा। जो सबसे ज़्यादा वीक एसिड है उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो नाउ यू कैन अरेंज इट लाइक दैट। ओके, सो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस बनता है वो क्या बनता है, वीक बनता है। जो आपका वीक एसिड है, वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। सेम इज ट्रू फॉर योर बेस। अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है देन कंजुगेट एसिड वी विल हैव इज वेरी वीक इन नेचर। सिमिलरली इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग बेस देन व्हाट वी हैव, strong base then the conjugate acid is very weak, and the weak base the conjugate acid is very strong। ओके, सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, समझ लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को, strong acid will have very weak conjugate base। Similarly strong base will have very weak acid, conjugate acid। तो सबसे पहले तो आपको कंजुगेट एसिड बेस का मतलब समझ पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप बता पाओगे कि जो क्या है, जो मैंने एसिड बेस की बातें करी है वो क्या हो रही है। एसिड बेस की बातें कैसे, मतलब कि कौन सा एसिड होगा, कौन बेस बनेगा, कौन कंजुगेट एसिड होगा, कौन कंजुगेट बेस बनेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो ही आप आगे जो है देखना पसंद करिएगा। नहीं तो आगे क्या है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर आपने अभी नहीं समझा तो आपको बहुत सी चीज़ें डिफ़िकल्ट लगने लगेंगी। हाँ, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। ओके, अब क्या है ना कि आप कोई भी चीज़ कोई स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे है या स्ट्रॉन्ग बेस कैसे है ये कैसे पता चलें, इसको पता करने का एक सिंपल तरीका है कि ऑल एसिड्स stronger
stronger than H plus ion are called strong acids. स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। जितने भी एसिड्स हैं जो H प्लस आयन, यानी ये H प्लस आयन की जगह मैं आपको लिख दूँ इसको H3 पॉजिटिव है, हाइड्रोनियम है। सो जितने भी एसिड्स हैं, ऑल एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोनियम आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सिमिलरली इफ यू हैव ऑल बेसिस stronger than hydroxide ion are called strong base और स्ट्रॉन्ग बेस। आपको पता है अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करो तो क्या होता है, H2SO4 यू नो, व्हाट एल्स, HCl यू नो, देन HBr यू नो, देन HClO4 you know, then HI you know. Similarly what about weak acids? Weak acid you know that CS3 COH you know, then HCN you know. सिमिलरली अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस की बात करो, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, देन KOH होता है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग वीक बेस की बात करो, वीक बेस की बात करो तो क्या होता है बताइए, अमोनिया एक जो वीक बेस है, और इसके अलावा बहुत सारे आपके वीक बेस आते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ से दिस इज़ द रेफरेंस पॉइंट कि आप किसी भी एसिड को या किसी भी बेस को स्ट्रॉन्ग कैसे बोल सकते हो, और इस तरीके से आप लिखने का एक तरीका है, ठीक है। चलिए इसे जल्दी से छापिए, फिर मैं आपको आगे और भी मज़ेदार चीज़ें बताता हूँ। हाँ, तो अपन ने अभी अभी क्या जाना है, जो बेसिक चीज़ें जानी है, क्या क्या बेसिक चीज़ें जानी है इसको थोड़ा समझेंगे, थोड़ा सा फिर से रिवाइज करेंगे क्या क्या चीज़ें जानी है मैंने अभी तक। कि जो ब्रॉन्स्टेड का जो कॉन्सेप्ट था, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट क्या था, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट था कि H प्लस आयन, सबसे पहले तो उन्होंने सॉल्यूशन की, एक्वा सॉल्यूशन की बात नहीं करी थी, उन्होंने बोला कि चलो भाई ऐसे ही काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद उन्होंने बोला कि H प्लस आयन अगर कोई स्पीसीज डोनेट करता है वो एसिड है, अगर कोई बंदा H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है वो बेस है, फाइन। उसके बाद हमने क्या बताया कि कंजुगेट एसिड एंड क्या कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या होते हैं, वो डिफर करेंगे एक ही H प्लस से, 2 3 4 5 से काम नहीं चलेगा, आपको एक ही H प्लस से डिफर करने चाहिए, तभी आप बोलोगे कि जी हाँ वो एक कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। उसके बाद अगर एसिड है तो एसिड से कंजुगेट बेस बनता है, अगर आपके पास बेस है तो बेस से कंजुगेट एसिड बनता है। एसिड से कंजुगेट बेस कैसे बनेगा, एसिड विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन, एसिड विल प्रोवाइड H प्लस आयन, एसिड विल लूज H प्लस आयन, तो क्या होगा कि जो बेस होगा, बेस के पास एक H प्लस कम होगा, किससे, एसिड से, यानी कि एसिड माइनस H प्लस आयन यू विल गेट वन कंजुगेट बेस। वेरी सिंपल, एसिड, ठीक है, एसिड क्या है, माइनस H प्लस आयन, व्हाट यू आर गेटिंग, कंजुगेट बेस, देन बेस प्लस वन H प्लस आयन, दिस इज वेल कंजुगेट एसिड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखेंगे कि कंजुगेट एसिड और बेस कैसे बनाना है। अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से कौन सा कंजुगेट एसिड है या कंजुगेट बेस है, तो क्या करेंगे, ये तरीका अपनाना है। अगर आपसे कंजुगेट एसिड पूछ रहा है, तो कंजुगेट एसिड अगर पूछ रहा है तो गिवन सब्सटेंस में क्या कीजिए, आप एक H प्लस जोड़ दीजिए। या अगर आपसे कंजुगेट बेस पूछ रहा है, कंजुगेट बेस पूछ रहा है, तो गिवन में क्या कीजिए, आप H प्लस हटा लीजिए। सो आपको ये बेसिक काम करना है। फिर क्या था कि हमने देखा कि जो अपोजिट नेचर का होता है, कंजुगेट एसिड या बेस, एसिड बेस पेयर जो होंगे, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स में जो आपका एसिड है या बेस है, वो दोनों का जो नेचर होता है वो क्या उल्टा होता है। इफ़ यू आर टेकिंग एसिड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग देन द corresponding conjugate base is very weak in nature, and if you are taking the acid is very weak, the corresponding base conjugate base is very strong in nature। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा समझेंगे कैसे। अगर आपके पास कोई एसिड है, तो जैसे अमोनिया क्या हो रहा है, अगर अमोनिया की बात करें, अमोनिया इज़ अ वीक बेस, अमोनिया NH3 अमोनिया इज़ वीक बेस। सो क्या हो जाएगा, अगर इसको H प्लस, अमोनिया क्या है, बीइंग द बेस इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन और H प्लस आयन, सो व्हाट विल हैपन
क्या होगा, पॉजिटिव H पॉजिटिव इन्होंने एक्सेप्ट किया तो क्या बना NH4 पॉजिटिव. व्हाट वी नो दैट दिस अमोनिया इज अ बेस, देन व्हाट वी नो दिस इज कंजुगेट एसिड, दिस इज बेस. व्हाट एल्स वी नो, और क्या चाहिए, मुझे पता है कि दिस अमोनिया इज अ वीक बेस. Weak base. What does it mean? It means that this conjugate acid we are getting is strong, very strong conjugate acid. So please remember that this is the base, very important concept. इस पे प्रश्न आराम से आपके सिंपल थ्योरेटिकल प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि बताइए इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनमें से कौन सा वीक एसिड है, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और इनमें से कौन सा वीक बेस है. ठीक है, तो मैं आपको कुछ प्रश्न करवाता हूँ. कुछ प्रश्न लिखते हैं. Which of the following, okay, so which of the following act as conjugate base. conjugate base तो पहला है, पहला शुरुआत करते हैं. फर्स्ट वन H3PO4, दैन दूसरा है H2PO4 नेगेटिव, H2PO4 नेगेटिव. तीसरा क्या है, लेट्स टेक NH2 नेगेटिव. दैन चौथा क्या है, चौथा लेट्स राइट इट अमोनिया है, लेट्स राइट अमोनिया. दैन फिफ्थ लेट्स राइट HS नेगेटिव. Sixth, let's write H3 positive, H3 positive. Then seventh, what we have, seventh, let's write phenol. Okay, so what we have to do is find it out. इनमें से कौन सा है जो कंजुगेट बेस की तरह काम कर सकता है, कंजुगेट बेस की तरह काम कर सकता है. बताइए, कंजुगेट बेस की तरह काम करने का मतलब कहाँ गया हमारा कंजुगेट बेस. कंजुगेट बेस की तरह काम कर सकता है तो कैसे पता चलेगा, यानी कि साथ वाला एसिड होना चाहिए. कंजुगेट बेस है तो कंजुगेट बेस की तरह तभी काम करेगा ना जब क्या है, किसी पार्टिकुलर एसिड में क्या कोई पैसिव एसिड में से H+ घटा दिया जाए तो वो कंजुगेट बेस की तरह काम करेगा. यानी कि आपको क्या है, जोड़ के सब में क्या HH+ जोड़ के देखना है कि क्या हमारे पास कोई मॉलिक्यूल बन पा रहा है. वेरी सिंपल. हाँ, सो मान लीजिए ये कंजुगेट बेस है, ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है वो सही में उपलब्ध होगा. ये तभी होगा ना जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई एसिड होगा. यानी कि अगर ये H+ क्या हो रहा है, कुछ एसिड में से H+ निकालेंगे तो ये बन जा रहा है, हमें ये चेक करना है. ठीक है, तो H3PO4 है, H3PO4 है, वो कैसे बन सकता है, क्या हमारे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो जिसमें से कोई X मॉलिक्यूल में से H घटाया तो H3PO4 बनना चाहिए. करेक्ट, दैट इज द कंजुगेट बेस का मीनिंग. कंजुगेट बेस का मीनिंग क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई एसिड होगा जिसमें से H+ घटाएंगे तो कंजुगेट बेस बन जाएगा. इसी तरीके से H3PO4 तभी बनेगा जब किसी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में से H+ घटाएंगे. क्या वो ऐसा मॉलिक्यूल है क्या, तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, H3PO4 है तो H3PO4 में एक और H+ जोड़िए तो क्या आपको लग रहा है H3PO4 है, क्या इसमें H+ जोड़ सकते हैं, तो हाँ जी, एक ऑक्सीजन ऊपर वाले में एक H+ जोड़ सकते हैं तो ये क्या है, कंजुगेट बेस की तरह काम करेगा. फिर H2PO4 नेगेटिव है, क्या H2PO4 में नेगेटिव में एक H+ जोड़ेंगे क्या, तो जी हाँ, H3PO4 में जोड़ेंगे तो क्या H3PO4 बन जाएगा. तो यस, दिस इज ऑल्सो वर्क एज आपका कंजुगेट बेस. NH2 नेगेटिव है तो क्या इसमें H+ जोड़ देंगे तो काम चलेगा, जी हाँ, इसमें अगर H+ जोड़ेंगे तो ये अमोनिया बन जाएगा. तो क्या यस, ये भी आपका क्या है, एक कंजुगेट, ये भी कंजुगेट बेस है. अमोनिया है, ये कैसे बनेगा, ये बनेगा NH4 पॉजिटिव. ठीक है, NH4 पॉजिटिव से ये बन जा रहा है. तो NH4 पॉजिटिव सी NH4 पॉजिटिव से क्या हो जा रहा है, NH3 बना, क्यों, -H+. सो दिस एक्ट एज कंजुगेट बेस. सिंपल, acid minus H+, so you are getting a base. So yes, this is a conjugate base. Fine. Okay, HS negative. So HS negative. So what we know, H2S minus H positive. So what you are getting,
एच नेगेटिव, यस दिस इज ऑल्सो ए कंजुगेट बेस। क्यों? क्योंकि एक H2S नाम का एक हमारे पास एसिड है जिसमें से H+ निकाला, वो HS नेगेटिव बन गया है। वेरी नाइस। ओके, व्हाट डज वी हैव? H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव कैसे बनेगा भैया? H3O पॉजिटिव या H3 पॉजिटिव में क्या करें हम, किसी तरीके से एक और H+ जोड़ें क्या? कैसे बनेगा बताइए? अगर हम इसमें एक और H+ जोड़ते हैं, सो आई थिंक दिस इज़ नॉट योर कंजुगेट बेस। ये आपका कंजुगेट बेस नहीं है। कैसे बेस नहीं है? क्यों? ऐसा क्यों हुआ? हम जब H3O पॉजिटिव को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? किसी न किसी में से H+ निकाल के, तो वो बंदा क्या होना चाहिए? H4O पॉजिटिव 2 पॉजिटिव होना चाहिए था। H4O पॉजिटिव 2 पॉजिटिव बन ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है। सिमिलरली फिनॉल है, फिनॉल कैसा होता है? फिनॉल ऐसा होता है। तो एक H+ क्या जुड़ सकता है? जी हाँ, एक H+ यहाँ से जुड़ सकता है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से एक H+ जाएगा तो क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। तो यस, फिनॉल ऑल्सो इज ए कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस। ओके, सो आपको क्या करना है? चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें एक H+ जोड़ के देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल उपलब्ध हैं कि नहीं, क्या ऐसे मॉलिक्यूल बनते हैं कि नहीं। अगर बन जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनते हैं तो वो आपका कंजुगेट बेस नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। नोट हो गया ना? चलिए इसे हटाया जाए। चलिए इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा 1-2 प्रश्न बनाते हैं, एसिड के भी देख ही लेते हैं लगे हाथों। चलिए चलिए एक प्रश्न लिखते हैं, सारे लोग सॉल्व करते हैं। राइट कंजुगेट एसिड ऑफ द फॉलोइंग। कंजुगेट एसिड ऑफ द फॉलोइंग। सो पहला है एच नेगेटिव। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे पास F नेगेटिव। तीसरा है OH नेगेटिव। देन चौथा क्या है बताइए? चौथा है वी हैव CH3OH, CH3OH। देन पांचवा क्या है? CH3NH2। फिलहाल तो इतने कहीं बनाते हैं। हाँ, सो कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? कंजुगेट एसिड बताना है। कंजुगेट एसिड के लिए क्या करना होता है? गिवन बेस, गिवन बेस उसमें से क्या करना है? आपको H+ ऐड करना है। गिवन बेस एक्सेप्ट 1 H+ विल गिव यू कंजुगेट एसिड। सो गिवन बेस, सो हमारे क्या करना है? सब के सब में हमको एक न एक H+ जोड़ना है। सो अगर आप HS नेगेटिव की बात करते हो, HS नेगेटिव प्लस 1 H+, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट लाइक H2H2S। सो या दिस इज द कंजुगेट एसिड। देन F नेगेटिव, F नेगेटिव में एक H+ जोड़ दीजिए, सो क्या हो जाएगा? HF हो जाएगा, कंजुगेट एसिड। देन OH नेगेटिव, OH नेगेटिव में एक H+ जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा, कंजुगेट एसिड। देन व्हाट इज CH3OH है, एक में H+ जोड़ दीजिए, CH3OH2 पॉजिटिव, क्या हो गया? अगेन आपका कंजुगेट एसिड हो गया। देन CH3NH2, इसमें क्या कीजिए? एक H+ जोड़ दीजिए, एक H+ जोड़ेंगे तो क्या होगा? वी विल बी गेटिंग CH3NH3 पॉजिटिव। सो दिस इज योर कंजुगेट एसिड। ठीक है, तो आप आराम से कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बड़े ही इत्मीनान से कंजुगेट एसिड बेस की बात कर सकते हैं और क्या समझ सकते हैं। जो बंदा क्या है, फिर से बात को दोहरा दूं कि जो एसिड स्ट्रांग है उसका जो कंजुगेट बेस बनता है वो क्या होता है? बहुत ही वीक होता है। जो एसिड स्ट्रांग है उसका बेस वीक बनता है, जो एसिड वीक है उसका स्ट्रांग कैसा बनेगा? जो वीक है उसका स्ट्रांग बनेगा। वेरी सिंपल। ओके, सो ये बातें हो गई। अब जो बात करने वाले हैं, एसिड बेस की बात हमने कर ली है, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस की बात कर ली है, क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों में सिमिलरिटीज, ये सारी बातें कर ली है। अब बात करते हैं किसकी? एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक, ये समझ लीजिए, दिस इज नॉट एम्फोट्रिक। एम्फोटिक भी बताऊंगा, दो मिनिमल डिफरेंस है मैं बताऊंगा। व्हाट इज एम्फीप्रोटिक? एम्फीप्रोटिक का मतलब है कि स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट
as well as donates H प्लस आयन। ठीक है, ऐसी स्पेसिस जो आपका H प्लस आयन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है एट द सेम टाइम, यानी कि आपने कोई स्पेसिस लिया है वो H प्लस डोनेट भी कर पाए और वो क्या करे, किसी और को दे भी पाए। तो ऐसी सारी स्पेसिस को आप क्या बोलते हो, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस बोलते हो, स्पेसिस बोलते हो। जैसे आपके पास तो सबसे वेल नोन है आपका वाटर। वाटर क्या कर सकता है बताइए, वाटर क्या करता है, वाटर आपका H2O है और ये वाटर एक और H2O के साथ रिएक्शन करके क्या कर सकता है, H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, दिस लिक्विड फॉर्म व्हाट यू आर गेटिंग, H3 हाइड्रोनियम आयन एंड, ठीक है, सेल्फ एक के साथ अपने के साथ रिएक्शन करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी और के साथ पहुंच गया। तो क्या है कि क्या कर सकता है, ये वाटर की बात करें, ये बंदा, इस बंदे की बात करें तो इसने क्या किया, इसने H प्लस इस वाटर को दिया, इसने H प्लस इस वाटर को दिया तो हाइड्रोनियम आयन बन गया। सॉरी, आई थिंक दिस इज रियली सॉरी, दिस इज OH नेगेटिव। ठीक है, तो क्या है कि ये H प्लस, ये जो वाटर मॉलिक्यूल था वो क्या किया, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को H प्लस दिया। तो क्या समझ में आया कि वाटर मॉलिक्यूल कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन, वाटर मॉलिक्यूल कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन, तो ये बन गया। एंड व्हाट डोनेट्स, तो ये वाटर मॉलिक्यूल कैन डोनेट H प्लस आयन, तो ये क्या बन गया आपका, OH नेगेटिव आयन बन गया। सो वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, डोनेट भी कर पा रहा है और एक्सेप्ट भी कर पा रहा है। तो क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस और एम्फीप्रोटिक स्पेसिस। वी हैव डिफरेंट ऑल्सो लाइक अमोनिया। अमोनिया क्या है, अमोनिया क्या करेगा बताइए, अमोनिया दूसरे अमोनिया से क्या करेगा बताएंगे, क्या, दो अमोनिया साथ में आया और क्या हुआ कि एक अमोनिया ने एक्सेप्ट किया पॉजिटिव चार्ज। क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो जब इस अमोनिया ने क्या किया, एक H प्लस इसको दे दिया, तो जब इस अमोनिया ने एक H प्लस इसको दे दिया तो क्या हुआ, अमोनियम आयन बना। और जब ये क्या है बताइए, इसने एक H प्लस लूज किया है, अमोनिया गिविंग H प्लस, अमोनिया डोनेटिंग H प्लस एंड अमोनिया गेनिंग H प्लस। सो समझ लीजिए ये जो बंदा था और ये बंदा था, इसने मान लीजिए H प्लस इसको दे दिया। तो क्या समझ में आ रहा है कि अमोनिया इज गेनिंग H प्लस, एक्सेप्टिंग H प्लस आयन। सो यू हैव अमोनियम आयन H for positive. Similarly, what is happening? Ammonia is donating H plus. This ammonia is donating H plus, and what you are getting, NH2 नेगेटिव। सो क्या समझ में आया, ये जो अमोनिया है वो क्या है, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस है। तो क्या समझ में आएगा कि आपको क्या पता होना चाहिए कि उसके पास कितने हाइड्रोजन है और वो कैसे दे सकता है मॉलिक्यूल्स को। तो उसके आधार पे आप बता सकते हो वो एम्फीप्रोटिक है कि नहीं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, लाइक लेट्स टॉक अबाउट योर H2SO4। क्या ये एम्फीप्रोटिक है, कैसे बताएंगे, क्या ये एम्फीप्रोटिक है कि नहीं। एक H प्लस लूज किया, HSO4 नेगेटिव है, क्या ये एक और H प्लस ले सकता है, हम इसकी बात करेंगे तो समझ में क्या आएगा। ये एक और H प्लस ले छोड़ के ये HSO4 नेगेटिव, ये क्या बनाएगा, SO4-2। तो अगर आप फोकस करेंगे इस बंदे पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, तो ये बंदा क्या कर सकता है, एक H प्लस लूज करके SO4-2 बना सकता है। ये बंदा और क्या कर सकता है, एक H प्लस ऐड करके H2SO4 बना सकता है। तो HSO4 नेगेटिव इज एम्फीप्रोटिक। क्या है, HSO4 नेगेटिव एम्फीप्रोटिक। अब देखिए क्या है कि आपको क्या पता होना चाहिए, जनरली आपको बेसिसिटी आपको पता होना चाहिए। अब बेसिसिटी मैंने क्या नया वर्ड बोल दिया, सो आई राइट बेसिसिटी। बेसिसिटी, अगर आपको कोई एसिड दिया हुआ है तो आप उसका बेसिसिटी पता होना चाहिए। जैसे आपका H2SO4 इसका बेसिसिटी 2 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन ये रिप्लेस कर सकता है, 2 हाइड्रोजन ये रिमूव किया जा सकता है। Basicity means, okay, so I'll write basicity somewhere, okay, I'm putting it here.
Basicity. What is basicity for acids? Basicity. This is the number of replaceable हाइड्रोजन. ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. तो क्या है, आपको कभी कभी क्या होगा, स्ट्रक्चर्स जानने पड़ेंगे, कभी कभी बहुत सारे मॉलिक्यूल को समझना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ खुद में खुद आ जाए, आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. जैसे मैं आपको यहीं पे बता दूं, जैसे आप H2SO4 की बात करते हो, व्हाट इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, B इज इक्वल टू 2. 2 हाइड्रोजन जो रिप्लेस किए जा सकते हैं. फिर HClO4 है, HClO4 में कितने होंगे, बेसिसिटी इज इक्वल टू 1. एक ही हाइड्रोजन है जो रिप्लेस किया जा सकता है. देन HCl क्या होगा, बेसिसिटी 1 हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या है, इन सब में क्या हो जा रहा है कि आपको बेसिसिटी पता चल गई. अब बेसिसिटी के आधार पे आप बता सकते हो कि क्या वो सब्सटेंस एम्फीप्रोटिक है या नहीं है. जैसे क्लोरीन, तो जैसे इसके HCl की बात करें तो बेसिसिटी 1 है, तो क्या है, बेसिसिटी 1 है तो वो एक H+ क्या कर सकता है, एक H+ लूज करके क्लोराइड आयन बना सकता है. अब क्लोराइड आयन फर्दर H+ तो लूज कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं. तो ये बंदा क्या एम्फीप्रोटिक तो बना नहीं सकता है. ये बंदा एम्फीप्रोटिक बना सकता है, ये इसके आगे वाला स्टेज एम्फीप्रोटिक बनाएगा कैसे. अभी मैंने लिखा कि आपको पता बेसिसिटी 2 है, इसका मतलब है कि वो 2 हाइड्रोजन लूज कर सकता है. तो जब उसे एक हाइड्रोजन लूज किया तो ये एक स्पीसीज आया. अब ये एक ऐसा स्पीसीज है जो फर्दर एक और लूज भी कर सकता है और एक और गेन करके ये बना भी सकता है. तो यही तो बताया था मैंने कि एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस जो हाइड्रोजन लूज भी कर पाए और गेन भी कर पाए. तो ये सब्सटेंस क्या, हाइड्रोजन जो है लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है. तो आप इसको क्या बोलोगे, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस स्पीसीज बोल पाओगे. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. फिर से आपको मैं बता दूं, स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट H+ आयन आर कॉल्ड एम्फीप्रोटिक स्पीसीज. और ये इसको जानने के लिए आपको बेसिसिटी अगर पता हो एसिड्स की तो आप आराम से बता सकते हो. ठीक है, जैसे H2SO4 की बेसिसिटी 2 है, हमें पता है. अब क्या है कि बेसिसिटी की बात करते करते मुझे याद आ गई आपके फॉस्फोरस वाले आपके फॉस्फोरस के जो एसिड्स होते हैं उसकी बात. जैसे कौन सा, आप सभी को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया ही गया होगा, H3PO4 देन H3PO3 देन H3PO2. व्हाट इज द बेसिसिटी, बेसिसिटी इज इक्वल टू 3 हेयर, बेसिसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 हेयर एंड बेसिसिटी इज इक्वल टू 1 हेयर. सब में 3-3 हाइड्रोजन है, फिर भी सबकी बेसिसिटी अलग है. क्यों, क्योंकि आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो समझ में आएगा. क्या स्ट्रक्चर बना दूं क्या मैं इसका, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O. सो एक बॉन्ड O दे दिया, बाकी आप लिख देंगे क्या, OH हियर, OH हियर, OH हियर. ठीक है, हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन तभी होता है जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो. प्लीज अंडरस्टैंड इट दैट आप, मैंने बताया था बेसिक नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ये तभी हो सकता है जब आपका हाइड्रोजन जो हो वो जुड़ा हुआ हो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ. तो आप देख रहे हो कि यहाँ फॉस्फोरस से ना जुड़ के ऑक्सीजन से जुड़ा है. ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.5, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1. इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है. ऑक्सीजन से वेरी 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 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हाइड्रोजन. तो क्या है, ऐसे हाइड्रोजन जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े होते हैं वो उसको रिप्लेस किया जा सकता है. तो क्या होगा कि यहाँ पे 3 ऐसे हाइड्रोजन हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल देम दैट द बेसिसिटी ऑफ H3PO4 इज 3. देन यहाँ पे क्या है, H3PO3 है. थोड़ा सा इनका बना, इसका फोटो बनाएं तो इसका ये है, एक OH यहाँ आया, एक OH यहाँ आया, सब हुआ क्या, 1 2 3 ऑक्सीजन पुर गया. तो 1 2 एक और हाइड्रोजन यहाँ पे है. तो एक जो हाइड्रोजन है वो फॉस्फोरस से जुड़ा है, और जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से जुड़ा है आप इसको तोड़ के हटा नहीं सकते हो. दैट इज नॉट अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, दैट इज नॉट अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है. इसके कारण क्या है कि ऐसे 2 ही हाइड्रोजन है जिसको आप हटा सकते हो, भगा सकते हो. दैट्स वाई दिस आर द 2 ओनली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एंड दैट्स वाई वी कॉल द बेसिसिटी इज इक्वल टू 2. क्लियर है. सिमिलरली आप इसकी H3PO2 का तो फोटो बनाएंगे तो क्या बनेगा, P डबल बॉन्ड O देन OH देन H देन H. ठीक है, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है जो आपके ऑक्सीजन से जुड़ा है. तो ओनली 1 हाइड्रोजन दैट इज द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. सो व्हाट इज द बेसिसिटी इज इक्वल टू 1. तो बेसिसिटी 1 है. इसके आधार पे आप आराम से बता सकते हो कि यस
अब क्या है, दिस आर एम्फीप्रोटिक नेचर और नॉट। अब कैसे बताते हैं, अब मैं इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे समझा ही दूँ आप लोगों को। ओके, सो मान लीजिए आपने बोला कि बेसिसिटी 3 है, जैसे H3PO कहीं H3PO4 पर PO4 है ना कहीं पे, हाँ ये रहा। सो H3PO4 का एग्जांपल लेते हैं। सो H3PO4 क्या है, बेसिसिटी 3 है। इट मीन्स कि ये 3 हाइड्रोजन रिप्लेस किया जा सकता है। तो जब आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे, एक हाइड्रोजन को भगाओगे, तो क्या बनेगा, H2PO4 माइनस। अब ये जो स्पीसीज है क्या है, बेसिसिटी 3, इट मीन्स ये 3 कर सकता था, एक भगा दिया, यानी ये अभी भी 2 कर सकता है। तो ये बंदा फर्दर H+ लूज कर सकता है, तो बनाएगा HPO4 माइनस। ये बंदा H+ लूज कर सकता है और ये बंदा H+ गेन कर सकता है और बना सकता है H3PO4। तो जो बंदा एक ही टाइम पे H+ ले भी पाए और H+ लूज भी कर पाए, उसको बोलते हैं एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। सिमिलरली ये क्या हो गया, B2 हो गया, क्या है ये B1 हो गया, यानी कि एक और हाइड्रोजन लूज कर सकता है। सो दिस इज PO4 माइनस 3। ये भी H+ लूज करेगा तो PO4 माइनस 3 बना सकता है, H+ गेन करेगा तो H2PO4 माइनस 1 बना सकता है। तो अगेन यू हैव समथिंग कॉल्ड HPO4 माइनस 2 एंड ये क्या होगा, ये क्या होगा, आपका एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस होगा। ठीक है, जिसको समझ लेंगे थोड़ा सा सारे लोग कि क्या है एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, तो आप बेसिसिटी के आधार पे बता सकते हो। अगर किसी का बेसिसिटी 1 है, सो वेरी डिफिकल्ट, दैट इज नॉट द एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। वो एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस कैसे हो सकता है, करेक्ट, वही ना। आगे उसके आगे आप जाओ तो बंदा, जैसे क्या है HCl की ही बात करेंगे, तो HCl क्या है, जो HCl से H+ एंड Cl माइनस बना, तो क्या हो सकता है, ये क्लोरीन कैन ओनली एक्सेप्ट एंड गिव यू HCl, और HCl कैन ओनली फर्निश द H+। क्या है, एट टाइम पे ना वो H+, या तो वो H+ ले पाएगा या H+ दे पाएगा, कोई एक ही काम करेगा। पर एम्फीप्रोटिक को दोनों काम करना है, तो दोनों काम करना है, तो जिसका B=2 है, तो अगला स्टेप पे चले जाइए और आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने H2SO4 के एग्जांपल लिया था, तो अगला स्टेप पे HSO4 नेगेटिव था, तो वो बताया था कि ये एम्फीप्रोटिक है। अब देखिए एम्फोट्रिक क्या होता है, एम्फोट्रिक क्या होता है, एम्फोट्रिक क्या होता है, एसिड भी होता है, बेस भी होता है। क्लियर, एम्फीप्रोटिक क्या होता है, सिंपल समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट समझा उसी का यूज करने वाले हैं। एम्फीप्रोटिक क्या होता है, जो H+ लूज करे, जो H+ लूज करता है वो उसको बोलते हैं एसिड। तो क्या है एसिड, सिंस इसने H+ लूज किया है इसीलिए आपने इसको एसिड बोल दिया। एंड और क्या समझ में आया, जो H+ गेन करे, जो H+ अपने आप को मिला ले अपने में, तो जिसमें H+ का एडिशन होता है उसको आप क्या बोलते हो, बेस बोलते हो। ठीक है, तो क्या है, देयर इज अ डिफरेंस, इसमें एक मिनिमम डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, समझना चाहिए कि क्या है। जो भी एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस होते हैं, ये H+ के कारण वो एसिड हुआ, ये H+ के कारण वो बेस हुआ। समझ में आ रहा है क्या, एम्फीप्रोटिक का मतलब है कि H+ लूज किया तभी उसको एसिड कहलाया गया, H+ गेन किया तो वो बेस कहलाया। ठीक है, वेरी सिंपल। तो क्या है कि जितने भी एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस होंगे वो क्या होंगे, एसिड बेस का काम करेंगे। सिंपल, एसिड बेस का काम, जितने भी एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस हैं वो क्या है, H+ लूज कर रहे हैं, नहीं तो गेन कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं तो क्या हो गया एसिड, गेन कर रहे हैं तो क्या हो गया बेस, दोनों का काम कर रहे हैं तो क्या हो गया, एसिड हो गया, बेस हो गया। सो दैट इज कॉल्ड एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। अब क्या है कि जितने भी आपके एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस हैं वो क्या कहलाएंगी, एम्फोट्रिक कहलाएंगे। पर जितने भी एम्फोट्रिक सब्सटेंस है वो एम्फीप्रोटिक नहीं कहला सकते हैं, कि जरूरी नहीं कि एसिड हैं तो वो H+ गेन, अब H+ आपका क्या है, आप H+ गेन करें और बेस का काम करें, जरूरी नहीं। जैसे आपको मैं बता दूं कि जिंक हाइड्रोक्साइड,
जिंक हाइड्रोक्साइड क्या है? दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक, नहीं, दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है, एम्फोटेरिक इन नेचर। जिंक पार्टिकुलर जिंक कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और क्या ये जो जिंक है वो एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन? सॉरी, क्या ये आपका H नेगेटिव दे सकता है? नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक क्या कर सकता है बताइए? ये एक्सेप्ट कर सकता है पर डोनेट नहीं कर सकता है। H+ आयन है, ये क्या है यही समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस है वो H+ आयन लूज किया, इसीलिए उसको आपने एसिड बोला। H+ आयन गेन किया, इसलिए आपने उसको बेस बोला, ठीक है। एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड एंड बेस, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। वो एसिड एंड बेस है, इसलिए आपने उसको एम्फोटेरिक बोला। ये एम्फीप्रोटिक है, क्या है? एम्फीप्रोटिक है। इसके आधार पे हमने अपना जो कॉन्सेप्ट लगाया था ब्रॉन्स्टेड, उसके आधार पे समझ में आया कि ये तो एसिड भी है बेस भी है, और जो एसिड बेस होता है उसको आप एम्फोटेरिक बोलते हो, ठीक है। तो ऑल द एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस आर एम्फोटेरिक इन नेचर, but all the amphoteric need not be amphiprotic in nature, please understand this, ठीक है। जैसे मैंने जिंक हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल दिया कि जिंक हाइड्रोक्साइड एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस नहीं है, स्पेसिस नहीं, ठीक। तो ये जो सारी चीज़ें थी जो आज हमने पढ़ी, आज इस लेक्चर में पढ़ी, जो पहला लेक्चर था इसमें हमने एसिड बेस की बात करी। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है लेविस है, लेविस का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट है लेविस का, उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन की बात वो करी नहीं थी, क्योंकि कुछ ऐसे सब्सटेंस आ गए थे जिसमें हाइड्रोजन की बात नहीं, जैसे आपका BF3 था, बोरिक एसिड्स था, ये, ठीक है। तो इनमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज़ हैं, जो अगले लेक्चर में बताऊँगा मैं आपको, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो ये सारी स्पीसीज जो है इसको एक्सप्लेन किया गया आपको लेविस के आधार पे, लेविस एसिड थ्योरी जो थी, लेविस एसिड बेस थ्योरी, इसके आधार पे उसको बताया गया, ठीक है। और अगले ही लेक्चर में हम लोग सेल्फ आयोनाइजेशन की बात करेंगे। कुछ ऐसे स्पेसीज होते हैं सेल्फ आयोनाइज हो जाते हैं, देन डिसोसिएशन क्या होता है उसकी बात करेंगे, और फिर हम आगे pH कैलकुलेशन की भी बात करेंगे, ठीक है। तो आप रिवाइज करते रहिए, जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया उसको फिर से भी वीडियो देखिए और फिर से रिवाइज कीजिए, और जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम्स बनाइएगा, उतनी चीज़ें आसान होती चली जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।